So today we are going to study further about active and passive voice. Okay. In active and passive voice we have already discussed the preposition, the conversion of preposition, and we have also studied about the two different passive forms of a single sentence. If in the sentence there are two objects, then we can make the sentence, we can change the sentence in two different passive forms. Okay. Now in the simple present, now we are going to solve some exercises based upon the active and passive voice. So the first exercise we are going to solve, that is D. In the D section, first is already done by the question. Okay, so we are going to solve the second one. No. At class, I think D is already done. Am I right, class? One is. Ma'am, we have already completed E and E exercises. We have to do it. Okay, we have to do F1 now, isn't it? F1. Yes. Okay, so we are going to solve the F1. Change the following sentence from active to passive voice. So the first one is given, the company is launching a new project. Okay, so C class. Class C, the company is launching a new project. So first what we should do, we have to recognize that what is subject versus object and what is the tense of the sentence. This is subject, this is object, and what is the tense? The tense is present continuous. Okay? Continuous. Okay. If the present continuous, so first what we will do? The new project will first add. Okay? So first one we will write a new project. Now I have told you that if the sentence is in present continuous, it is launching, so it will be changed into, it will be add is being. It will add being. And you see that a new project is a single, so it is a single thing. So what we will put is R or M, is. Okay. So we will put is, then we will add being, and the launch, its third form will be written. So its third form is launched. So is being launched by whom? By company. Me. So by this way we have done this sentence. So class, I hope is it easy for you? Is it so? Yes, ma'am. Okay. So next one is about, are you preparing vegetable soup for dinner? Who is going to tell me the answer of this one? Kindly raise your hand. The sentence is, are you preparing vegetable soup for dinner? Vegetable soup for dinner? Question. So who is going to tell this? Ankit Soni. Nobody else. Only Ankit Soni is interested to tell.
Okay. Wait, Ankit. Wait, my dear. Let me see who are the other students. Isha Singh. Isha Singh. Yes, ma'am. Beta tell. Let me give you one. Who is going to tell me? Anyone else? These vegetables will be prepared by you for dinner. Okay, Rituja, speak again. These vegetables will be prepared by you for Listen to me, class. Let me tell you. Are you preparing vegetable soup for dinner? First, what we should do? We should recognize what is the subject, what is object, and what is the tense. So first, tense इसमें कौन सा है आपका? Present continuous. ठीक. Subject क्या है इसमें आपका? You. और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है आपका सूप, वेजिटेबल सूप है. ठीक है. अब सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको देखना है कि इसका डिजाइन कैसे है. ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. अब अगर हम सब्जेक्ट जो कि आपका यू था उसके अकॉर्डिंग हमने आर लगाया था, लेकिन जो हमारा अब सब्जेक्ट बनेगा मतलब जो ऑब्जेक्ट वेजिटेबल सूप है वो क्या है? वो तो सिंगल है. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हम इस का यूज करेंगे. अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला बताया था आप लोगों को कि जो सब्जेक्ट बनने जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस लिखेंगे. यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है? वेजिटेबल सूप है. वेजिटेबल सूप प्लूरल है या सिंगुलर? सिंगुलर है. तो यहाँ पर क्या लगाऊंगी? इज लगाऊंगी. इसके बाद इज वेजिटेबल इज वेजिटेबल सूप. अब तुम लोग को याद होगा कि इसके साथ जब भी बनाते हैं तो बीइंग लगा देते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा? इज वेजिटेबल सूप बीइंग prepared. अब क्या करना है हमने? जो आपका प्रिपेयर है इसको थर्ड फॉर्म में लिखना है. तो प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या जाएगा? प्रिपेयर्ड. इज वेजिटेबल सूप बीइंग प्रिपेयर्ड for dinner by you है. तो इसका ऑप्टेटिव फॉर्म क्या होता है बच्चों? यू ही होता है. ठीक है. जैसे ही का ऑप्टेटिव फॉर्म क्या होता है? हिम. शी का क्या होता है? हर. दे का क्या होता है? देम. वी का क्या होता है? अस. उसी तरीके से यू का क्या होता है? यू ही होता है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लगा है? डिनर बाय यू. तो बाय दिस वे दिस सेंटेंस इज डन. ईशा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ईशा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? Okay. Next question is why is she hitting the dog? Now let me do it for you also. Why she is hitting the dog? Sentence is why is she hitting the dog? So this is the sentence. In the last sentence you have seen the answer. The question was in the form of yes or no. Okay. But in this question the questioning word is given. Okay. So you see that in the sentence the questioning word is already given. So we cannot remove the questioning word from its place. Okay. So you see in the sentence she is the subject. Yes beta.
What is the subject? Subject is she. What is the object? Object is the dog. The dog. And what is the tense? Tense is present continuous. Present continuous tense. Okay. So first we should put what? Why? Why will always be at the first. All the questioning word will come at first every time. Okay. So why को why की जगह पर ही लिख दिया. इसके बाद हमने क्या देखना है? अब हमें क्या करना है? जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये इज के लिए हमने किसके लिए यूज किया था? शी के लिए. लेकिन यहाँ पर डॉग है. डॉग के लिए इज, एम, आर कौन सा यूज करें हम? आर यूज करते हैं डॉग के लिए. डॉग ढेर सारे थोड़ी ही हैं, एक ही डॉग है. तो डॉग एक ही है तो इजी लगेगा ना. इस करेगा वाई इज द डॉग. इसके बाद मैंने क्या बताया था? इस के साथ बीइंग भी लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? इज द डॉग बीइंग. इसके बाद वर्ब आएगी आपकी. वर्ब में हिट है तो इसका हिट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड. बीइंग हिट. ठीक. इसके बाद हिट और कौन रहा है? वो लड़की कर रही है. और शी का मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को? ऑप्टेटिव फॉर्म By her. वेरी गुड. क्या जाएगा? बाय हर. बाय दिस वे दिस सेंटेंस इज डन. किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो. So the part 4 and part 5 will be done by you. The part 4 and part 5 of exercise F, you will have to do it yourself. Okay. Next, for the present perfect, I am going to solve the first one. Okay. फर्स्ट वन क्यों करूंगी? मैं एक काम करती हूँ, जी वाली एक्सरसाइज में से मैं क्वेश्चनिंग वाला ही आपको करके दिखा दे रही हूँ. ठीक है. हु स्कैटर्ड द गार्बेज हेयर. ओके. सो जी वाली एक्सरसाइज में मैं 5 वाला कर रही हूँ. हु स्कैटर्ड द गार्बेज here. This is the question. Okay, so now we have to change. Who को हमेशा क्या बना देते हैं बच्चों? by whom बना देते हैं. अब तुम लोग कहोगे मैम ऐसा क्यों करते हैं? कारण है. यहाँ पे देखिए आप लोग, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है क्या? नहीं है. हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? who. हमारा सब्जेक्ट ही क्या है? who. जो हमें पता ही नहीं है. ठीक है. तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम क्या करते थे? सब्जेक्ट को लास्ट में लगाते थे और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगाते थे. ठीक है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें ये पता करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और इसका टेंस क्या है. पहली चीज तो इसका टेंस क्या है? सिंपल पास्ट है. क्या है? सिंपल पास्ट. दूसरा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या है? गार्बेज. और सब्जेक्ट क्या है आपका? हाँ, ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये है आपका सब्जेक्ट. ठीक. सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को पहले लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड हु दिया हुआ है. हु की अपनी एक कंडीशन होती है. जब भी ऐसा आएगा, हु आएगा, तो सबसे पहले क्या लगाओगे आप? बाय हूम. क्या लगा लोगे? बाय हूम लगा लोगे. क्योंकि बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लास्ट में लगाते थे तो इस बार पहले ही लगा लेंगे. ठीक है. बाय हूम. अब सिंपल पास्ट है. ठीक है. और बाय हूम है तो सिंपल पास्ट है. तो सिंपल पास्ट के लिए मैंने क्या बताया था कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है उसे में क्या बना देते हैं? वॉज में कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्या लिखेगा? बाय हूम. इसके बाद सीधे द गार्बेज. बाय हूम सॉरी, यहाँ पे पहले वॉज लगाएंगे हम. ठीक है. बाय हूम वॉज, क्योंकि
जस्ट क्वेश्चनिंग वर्ड के तुरंत बाद क्या लगता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब लगती है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, बाय whom was the garbage scattered here, scattered here. Okay, so by this way this sentence is already done. Okay, so class, can you do first, second, third, fourth of exercise G? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So in the simple, yes my dear. मैम इसमें जो हैज और हैव बीन लगाना, मैम आपने पॉज कैसे लगा दिया? कहाँ लिखा है बेटा कि हैज बीन लगाना है? मैम प्रेजेंट परफेक्ट में मैम ए और बी में तो ऐसे। बेटा एक बात बताओ, कॉमन सेंस जैसी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? हाँ सुनो मेरी बात, ये सेंटेंस को देखो, तुम ये मत देखो कि तुम्हारी बुक में वो क्वेश्चन कहाँ दिया है, तुम ये देखो कि वो सेंटेंस क्या है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि चने के अंदर काबुली चना तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो चने में आता ही नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, आप सेंटेंस को देखो, इस सेंटेंस में स्कैटर्ड सेकंड फॉर्म में है कि नहीं, ये बताओ पहले। वर्ब की सेकंड फॉर्म में है, उसके अलावा यहाँ पर हु हैज नहीं लगा हुआ है, लगा है क्या? जब हैज लगा ही नहीं है तो ये सेंटेंस, इसका टेंस सिंपल पास्ट ही तो होगा, प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं समझे? ये सेंटेंस में हैज हैव कहीं लगा है? अरे बोलोगे भाई? जब इसमें हैज हैव नहीं लगा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है? भाई एग्जाम में तो आपसे कोई भी पूछ लिया जाएगा ना, तो आपको इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि ये सेंटेंस है कौन से उसका। अब कहाँ से दिया है, क्यों दिया है, ये थोड़ी ना आएगा एग्जाम में। एग्जाम में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो पहले तो ये पता लगाओ कि ये टेंस कौन सा है। तो ये टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई हैज और हैव का प्रयोग नहीं किया गया है। आया समझ में सबको? चलो आगे। वैसे कोई परेशानी हुआ करो तुरंत पूछा करो। वेरी गुड, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था ही इज वेरी गुड बॉय। ओके, चले आगे। तो अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज एच। ठीक है, एक्सरसाइज एच में हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पैसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस। अब इसमें देखो, इसमें सिंपल पास्ट टेंस ही फिल करना है, समझ गए ना? इसमें सिंपल पास्ट टेंस ही फिल करना है, तो ये हमें पहले से ही कंडीशन दी हुई है। लेकिन जी वाले में ऐसी कंडीशन नहीं दी हुई थी, उसमें क्या था, एक्टिव टू पैसिव करना था। अब आपको पता करना है कि वो टेंस क्या है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा और मैं ऐसा ही क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, आगे क्या है आपका, द इवेंट डैश बाय अ पॉपुलर ब्रांड फॉर द फास्ट फूड। द इवेंट dash by a popular brand, by a popular brand of fast food, and what is the hint? Hint is sponsor. स्पॉन्सर मतलब क्या होता है, किसी चीज को पैट्रनाइज करना, पैसे देना, उसे बोलते हैं हम स्पॉन्सर करना। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती हूँ और उसके लिए मैं अपना मनी लगाती हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो गई, मेरी स्पॉन्सरशिप हो गई। क्या हो गई? स्पॉन्सरशिप हो गई। तुम लोगों ने देखा होगा जब मूवी होती है, जब वो मूवी ऑन होती है, मतलब चालू होती है, ओपन होती है, तो उसकी बिगिनिंग में बताता है कि दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय, तो कुछ एडवर्टीजमेंट कंपनियों के नाम आते हैं,
रेडियो मिर्ची और कुछ प्रोडक्शन हाउस के भी नाम आते हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनी का नाम आता है, और उसमें बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउस के लोग होते हैं, म्यूजिक हाउस के लोग होते हैं, वो सभी का नाम उसमें लिखकर आता है। तो क्या होता है उसका मतलब कि उस मूवी को बनाने के लिए उतने लोगों ने अपना अपना पैसा लगाया है, तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन क्या है हमारा कि द इवेंट डैश बाय अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ फास्ट फूड, स्पॉन्सर दिया हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है। सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, पता है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो इसको हम लोग क्या बना देते हैं, इसको हम लोग वॉज बना देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। याद आया कुछ, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और वॉज लगाएंगे तो पहले ये देखेंगे कि इवेंट वॉज के लायक है या वर्ब के लायक है। तुम लोग बताओ वॉज लगाऊं या वर्ब? मैम वॉज। चलो गुड, तो हम लगा देंगे वॉज, और स्पॉन्सर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पॉन्सर, क्या हो जाएगी, स्पॉन्सर्ड। So by this way this question is already done. Okay, so you see that question number H, you can do it yourself, and one question I am going to solve from I. Which one I should tell class, which one I should tell? Ma'am Second one. Okay, second one is the policeman question. The policeman questioned. The policeman questioned the suspicious looking man. The suspicious looking man. So this sentence is, first what we should do, we should recognize subject, object and the tense. टेंस पहले ही पता चल गया है कि ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ड की सेकंड फॉर्म लगी हुई है वर्ब की, ऑब्वियसली इट इज सिंपल पास्ट। दूसरा, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हम स्पेस बनाएंगे। एक सेकेंड, मैं स्पेस थोड़ी सी क्रिएट कर लेती हूँ। ये है आपका सस्पिशियस लुकिंग मैन। सो क्या हो जाएगा, द suspicious looking man। अब ये मैंने क्या बताया अभी कि पहले हम क्या लगाएंगे, वॉज, वर्ब और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर देखो द सस्पिशियस लुकिंग मैन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल। प्लूरल है। मैम सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर प्लूरल में पढ़ाना पड़ेगा। क्लास 2 वाला बच्चा बता देगा कि सस्पिशियस लुकिंग मैन प्लूरल है या सिंगुलर है। हद कर दी यार तुम लोगों ने। नेक्स्ट, द सस्पिशियस लुकिंग मैन वाज। नेक्स्ट, द क्वेश्चनड, दिस इज द सेकंड फॉर्म एंड द थर्ड फॉर्म इज आल्सो क्वेश्चन, सो इट विल बी द सस्पिशियस लुकिंग मैन वाज questioned by the policeman। ये पुलिस कभी नहीं होता है, इन हिंदी इट इज पुलिस, इन इंग्लिश इट इज पुलिस। ओके, नेक्स्ट इट इज अबाउट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम, इट इज द सेम। ओके, in the past continuous, what it will be, the J1. In the J exercise I am going to solve, which one I should solve class, which one?
थर्ड वाला बता दूं, थर्ड वाला, ठीक है, थर्ड वाला बता दूं। जे का थर्ड है, वॉज ही राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर, वॉज ही राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ लता मंगेशकर, this is the question. Okay, so you first what we have to do, we have to see that what kind of question it is. The question is yes or no type. Okay, so if the sentence is yes or no type, so we will have to change it in the same form. Okay, so you see that was is given with he, and he is the subject right now, and the biography of Lata Mangeshkar is the object. So the biography of the Lata Mangeshkar is the object, which is going to be the subject in the passive form, and which is singular or plural? Singular. So if we are going to change it in the was, so the biography of Lata Mangeshkar will also sustain was only. So what we will write? Was. Okay, the biography of Lata Mangeshkar के लिए भी was ही लगाएंगे, ठीक है। was के बाद जस्ट क्या आता है, आपका सब्जेक्ट आता है, तो हम क्या लगाएंगे? was the biography of Lata Mangeshkar then was के साथ हमेशा क्या लग जाता है? being ऐड हो जाता है, तो was the biography of Lata Mangeshkar being. Now what is the verb is writing. Okay, so how we will change it in the third form? So write, wrote, written, so it will be being written by, and who is the subject? Subject was he. Okay, so now he is going to the object, so optative form will be applied. So he का optative form मैंने भी क्या बताया था? him. Very good. By him. So the question is done. So I hope that all the question will be solved likewise. Okay. Next is past perfect. Past perfect. Okay. In the past perfect, you see my uncle. Okay. Wait. So the sentence is which one I should solve, class, in exercise K? Kindly choose one. First, I'm second. Okay, let me do second one. Okay, the father had advised me. Okay, the father had advised me to carry a torch. As it was dark outside. Okay, so this is the question. Only okay. So first what we should do, as always, subject, object and tense. Tense is past perfect, subject is father, and Father. what is the object? Me. It means I. Okay. अब me जो है वो क्या है? ऑप्टेटिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें इसका नॉमिनेटिव फॉर्म लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? नॉमिनेटिव फॉर्म। और me का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है? I. क्या होता है? I. तो मैं क्या लगाऊंगी? I.
तो सबसे पहले क्या लगाऊंगी, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। और हैड दिया हुआ है, और हैड में जब इसको चेंज करते हैं तो हम क्या ऐड कर देते हैं, बीन। क्या ऐड कर देते हैं, बीन। तो आई के साथ क्या लगाऊंगी, हैड, इसके साथ लगा दूंगी बीन, ठीक है। आई हैड बीन। और एडवाइस की थर्ड फॉर्म क्या होती है, एडवाइज्ड होती है। तो आई हैड बीन एडवाइज्ड बाय फादर टू कैरी a torch as it was dark outside. Okay. So by this way, this sentence is also done. Any confusion, class? You can ask me. Any confusion? I hope there is no confusion. Now for the I1, I am going to solve the one. For the I, in the exercise I, one question I am going to solve. The question is, the loud music will disturb my neighbor. Okay. So the fourth one I am going to write, the loud music will disturb my neighbor. Okay, so this is the sentence. We are going to change it. So what I have told you in the future tense, first we should know that what is the subject. Subject is this. What is the object, this. And what is the tense? Tense is simple future. Okay. Okay. So we are going to make it passive. So passive is my neighbor. My neighbor. And will become will be. Will be. And disturb, third form is disturbed. Will be disturbed by the loud music. Now the sentence is done. So the I exercise you can do it yourself. Future continuous tense cannot be changed. Future perfect tense is given. So in the M exercise, one sentence I am going to do. Will they have closed the gate before 9 p.m.? So I am going to this one. Do it to this one. Will they have closed the gates before 9 p.m. This is the question. So what we should do, first we should know that what is the question. Question की डिजाइन कैसी है, yes और no वाली है, तो इसको बरकरार रखेंगे. सब्जेक्ट क्या है, दे, और क्या बंद किया गया है, द गेट, मतलब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट आपका गेट है. सबसे पहले गेट्स लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, गेट्स लिखा हुआ है और ये प्लूरल है. लेकिन फ्यूचर में सिंगुलर प्लूरल जैसा कोई भी सेंटेंस नहीं होता. उसमें फर्स्ट पर्सन के अलावा सब में विल का प्रयोग होता है. तो विल को विल ही रखेंगे हम, ठीक है. और यहाँ पे द गेट्स है तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, द गेट्स लगा देंगे, ठीक. उसके बाद क्या लगा है, विल हैव लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, इट विल बिकम विल हैव बीन. ओके. सो द विल द गेट्स have been, will the gates have been closed. Closed is already third form. Okay. Will the gates have been closed by, because
दे का ऑप्टेटिव फॉर्म क्या होता है? देम. बाय पहले बिफोर आएगा. क्लोज्ड बिफोर 9 p.m. by them. Don't forget. Okay. So by this way we have done all the exercises based on the tense. Okay. Then the next one is given based upon the modal auxiliaries. Those sentences who are having modal auxiliaries, we will solve them. Okay. Tomorrow. And we will talk about them tomorrow. Then command sentence will come. Then the let sentence will come. And the transformation of interrogative into passive voice. So these questions will come tomorrow, and tomorrow we'll discuss about them. Okay, till then, thank you everyone, and you will have to do all the exercises which we have done today. Yes, listen to me, the homework also. The homework is exercise F, G, H, I, J, K, L and M. Okay. E was already done yesterday. F, G, H, I, J, K, L, M. Okay, till M you have to do, and exercise H. Only exercise H you have to do in your book. Or rest all the exercise will have to be done in your copy. Okay. Thank you everyone.